We are going to discuss the numericals on electric field. 2-point charges of 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by distance 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. What is given to us? Charge Q1 equal to 5 into 10 to the power minus 19 coulomb. Q2 equal to 20 into 10 to the power minus 19 coulomb, and distance between them is 2 meter. Now this is charge Q1, this is charge Q2, distance between them is R. अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर जीरो होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा. इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होंगे. तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एंड Q2 इन दिस रीजन विल बी इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पर भी जीरो नहीं हो सकता. राइट. नाउ इन बिटवीन A and B electric field intensity will be in opposite direction due to Q1 and Q2. So let at point O electric field intensity is 0. Clear? Now electric field intensity due to charge Q1 at O is given as E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by this distance by AO square. Let this distance is x. So E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by x square, and the direction of E1 will be this one. कैसे डायरेक्शन मैंने दिए यहाँ पे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको इधर पुश करेगा और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2 एट द पॉइंट O कितना हो जाएगा? E2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R माइनस एक्स स्क्वायर, R माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R ही है, x है, तो बचेगा कितना? R माइनस एक्स, दैट इज BO. डायरेक्शन क्या होगा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E2. ये E2 की डायरेक्शन हो गई. अब O पॉइंट पे E1 इज इन दिस डायरेक्शन, E2 इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज 0. इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल भी हैं. तो एट O E1 इक्वल टू E2, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R minus x whole square. This and this cancel. Substituting the value of R here, Q by Q1 है यहाँ पे, Q1 by x square equal to Q2 by 2 minus x whole square. Substituting the value of Q1 and Q2, 5 into 10 to the power minus 19 divided by x square equal to 20 into 10 to the power minus 19 divided by 2 minus x whole square. ठीक. This and this cancel. 5 1 5, 5 4 20, that is 4 x square equal to 2 minus x whole square. ठीक.
that is 2x equal to plus minus 2 minus x, and from here x equal to 2 by 3 meter or minus 2 meter. Minus 2 meter is not possible, therefore electric field intensity will be 0 at a distance 2 by 3 meter from A. ठीक है, चलिए, थैंक यू. Question number 2. 2-point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? What is given to us? That QA is this much, QB is this much, distance is this much. Now this is QA equal to 3 microcoulomb, QB equal to minus 3 microcoulomb, and I have to find the electric field, the midpoint O. This is A, this is B, and the whole distance R is 0.2 meter. ठीक है. Now electric field intensity due to charge QA at a point O will be EA equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 3 microcoulomb, 3 into 10 to the power minus 6 divided by this distance AO square. ठीक है, and AO equal to this is 0.1 meter, this is 0.1 meter. 1 upon 4 pi epsilon naught 3 into 10 to the power minus 6 divided by 0.1 meter square. Direction of EA, this is plus चार्ज. यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे. ये पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा. दिस इज द डायरेक्शन. एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज QB एट द पॉइंट O. तो EB इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर. इसका वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अब डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन के लिए EB के डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? प्लेस है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ये इसको अपनी तरफ फोर्स इधर लगाएगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा. एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, यानी EB भी जो है, वेक्टर EB भी जो है इसी सेम डायरेक्शन में होगा. यानी EB एंड वेक्टर EA एंड वेक्टर EB बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन. राइट, AB इधर होगा और AB इधर होगा. नाउ total electric field intensity at the point O, E equal to EA plus EB, and when you are going to solve, so E equal to 5.4 into 10 to the power 6 Newton per coulomb. राइट, यहाँ पे आप EA और
ई ए और ई बी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 to the power minus 19 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? अगर इस पॉइंट पे हम एक एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज द Q इज गिवन हाउ मच, -1.5 into 10 to the power -19C। ये चार्ज मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट कितना है, E आया, कितना चार्ज रखा Q, तो फोर्स कितना लगेगा QE, तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू E, राइट। अब यहाँ पे आप Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो विदाउट पोलैरिटी, E इतना दिया हुआ है, एंड फोर्स विल बी हाउ मच, 8.1 into 10 to the power -3 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे अगर आप Q चार्ज को रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स इतना लगेगा, क्योंकि जिस चार्ज को आपने रखा है उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स OA, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 2 point charges of 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant electric field is 0. What is given to us? Two charges, QA equal to 16 microcoulomb, QB equal to -9 microcoulomb. Distance R equal to 8 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। नाउ इन दिस केस दिस इज QA equal to 16 microcoulomb and QB equal to -9 microcoulomb. Now this distance is R, ठीक है। The electric field intensity due to charge Q1 and QB cannot be 0 between two charges। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो QA से QB की तरफ होगी, इधर होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, तो ये 0 नहीं हो सकती। इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, राइट। बट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0 एट द पॉइंट लेफ्ट ऑफ द चार्ज QA। यहाँ 0 नहीं हो सकती। इस क्यों नहीं 0 हो सकती? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज लार्ज। तो क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फील्ड अपोजिट तो होगी लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स दैट वी हैव लेफ्ट ओनली वन चॉइस, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ द चार्ज विल बी कैंसिल आउट इन दिस रीजन, ठीक। लेट O be the point where electric field intensity is 0. Now let this distance is x, ये R है, ये x है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज QA, तो EA इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस r प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r, ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10 टू द पावर -6, r इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर, दैट इज 0.08 प्लस x होल स्क्वायर। नाउ the direction of electric field will be this one, ये। Now magnitude of the electric field intensity due to charge QB, EB equal to 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power -6 divided by x square। ठीक है, एंड x को हमें निकालना है। The direction of EB will be in this direction. This is the direction of vector EB. क्यों कैसे हो गया यहाँ पे? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है यहाँ पे। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज QB इधर होगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 16 माइक्रोकूलम इधर रिपेल करेगा, तो ई की डायरेक्शन इधर हो गया। ठीक, नाउ एट ओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 है। तो इसका मतलब हो गया कि एट ओ ई ए इक्वल टू ई बी, डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गया, अगर इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दिस एंड दिस कैंसिल, what we will get 16 into 10 to the power -6 divided by r plus x whole square equal to 9 into 10 to the power -6 divided by x square। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू सारे। 16 into 10 to the power -6, r कितना है 0.08 प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू 9 into 10 to the power -6 x स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट टू वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इक्वल टू 0.24 मीटर एंड x इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 0.24/7 माइनस मीटर। ठीक है, now the x equal to minus 0.24/7, the magnitude of EA and EB are equal, but the two fields will not cancel each other, because at this point both the field will be in the same direction. Hence electric field is 0 at a point at a distance 0.24 meter from the charge -9 माइक्रोकूलम। ठीक।